Hello everyone, welcome to online class of Modi Public School. Today we are going to discuss part 2 of chapter number 10 averages. And in today's class we will be dealing with the word problems based on average. Let us discuss question number 2. Find the average of all the even numbers between 1 and 20. What we have to do here, we have to find the average of all the even numbers between 1 and 20. So let us first here write down all the even numbers between 1 and 20. Even numbers between 1 and 20. Okay, so in even numbers between 1 and 20 means we will not include 20. 20 is an even number, we don't have to include it because between means इनके बीच में जो even numbers आ रहे हैं. So we will start with 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 and 18. So these all are the even numbers between 1 and 20. Now we have to find out its average. Okay, so let us start. We all know that average is equals to sum of all the quantities upon number of quantities. So here we will first find the sum. 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12 plus 14 plus 16 plus 18 divided by the number of quantities. Number of quantities are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So here I'll write 9. Okay, these are the 9 numbers. So we will divide it by 9. Let us start adding. Here 2 plus 4. 2 plus 4 is 6. 6 plus 6, it is 12. 6 plus 6 is 12. 12 plus 8 is 20. 12 plus 8 is 20. 20 plus 10 is 30. 30 plus 12 is 42. 30 plus 12 is 42. 42 plus 14. So 42 plus 14 will be 56. Okay. 56. 56 and here 16. So here let us write 56 plus 16 plus 18. These are the numbers which are left. We have to add. Let us check again so that there will be no error. 2 plus 4 6. 6 plus 6 12. 12 plus 6 12 plus 8 20. 20 plus 10 30. 30 plus 10 40. 42. 42 and 4 46. 46 and 10 56. Now we have to add it. So 6 plus 6 12. 12 plus 8 here 20. 5, 6, 7, 8, 9. Sum is 90. So here we will write 90 by 9 and the answer is 10. So average of all the even numbers between 1 and 20 is 10. Okay, here it is 10. Let us discuss next word problem. That is question number 4. Okay, let us discuss question number 4. Tom saved 400 rupees in the first and second months, 800 rupees and 600 rupees in the third and the fourth months respectively. Find the average monthly saving over the 4 months. Okay, यहाँ पे टॉम ने 4 months में कितनी सेविंग की है ये हमें बताया है एंड दे आर आस्किंग अस कि इन सेविंग्स का जो उसकी मंथली सेविंग्स है इनका आप एवरेज कैलकुलेट करिए. सो हियर वी विल फर्स्ट राइट द इंफॉर्मेशन. ओके, हम जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है हम उस इंफॉर्मेशन को लिखेंगे. हियर दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. Tom's saving. टॉम की जो सेविंग है फॉर फर्स्ट मंथ ओके फॉर फर्स्ट मंथ इट्स सेविंग इज 400 rupees. Now for second month, for
second month, it is same for second month, it is given in question कि first और second month पे इतना उसने save किया है. Then for third month, it is 800 rupees, and for fourth month, it is 600 rupees. Okay, so this is the information which is given in question कि उसके 4 months में उसने इतनी इतनी सेविंग की है. फर्स्ट और सेकंड मंथ की सेविंग सेम है, दैट इज 400 रुपीज. अब आपसे कहा है फाइंड द एवरेज मंथली सेविंग. तो एवरेज जो हमें इसका कैलकुलेट करना है, इट्स एवरेज मंथली सेविंग विल बी, वी विल फाइंड द सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, मीन्स 400 प्लस 400 प्लस 800 प्लस 600. ओके, और इसका एवरेज हम फाइंड करेंगे. 4 क्वांटिटीज है, वी विल डिवाइडेड बाय 4. Rest of the steps I am writing here. Okay, now we have to find out the sum. 400 plus 400, it is 800. 800 plus 800, 1600. 1600 plus 600, so it will be 2200. So here we'll write 2200, it is the sum divided by 4. Now we have to perform the division. इसको हम divide करेंगे. Here 2200 by 4 5s are 20. Okay, then 2, we will copy down 0. 4 5s are is again 20, and then 0, so 0 times. So 550 is the answer. It means जो उसकी मंथली सेविंग हो रही है, जो मंथली जो हम अगर एवरेज एक कैलकुलेट करें, so in average his monthly saving is 550 rupees. So if these questions are very easy, जैसा हम पहले एवरेज कैलकुलेट कर रहे थे, these are same. Just here word problems are given. जो question है वो वर्ड फॉर्म में हमें दिए हुए. तो we will form statements for it. Simple statements जैसे इस तरह से बनाए हैं, ऐसे simple statements हम form करेंगे, and then we will calculate the average. Okay. Here let us discuss one more question. That is question number 5. Okay. Question number 5. Question number 5 is slightly different, थोड़ा सा different है. Let us try to understand it. The average of first 5 scores is 46 and that of the first 4 is 45. Find the fifth score. अब यहाँ पर हमें average already given है, but हमसे जो पूछा गया है that is about the score. Okay, so here average of, this is question number 5. लेट, पहले हम यहाँ पे स्कोर्स मान लेते हैं. लेट द स्कोर्स आर, हमें पता नहीं है कि स्कोर्स कितने हैं और हमसे पूछा जा रहा है आप बताइए फिफ्थ स्कोर कितना होगा. तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं स्कोर्स क्या हैं, S1, S2, S3, S4 एंड S5. ठीक है, ये हमारे 5 स्कोर है. स्कोर 1, स्कोर 2, स्कोर 3, स्कोर 4, स्कोर 5. क्लियर. अब हमसे कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि फर्स्ट 5 स्कोर्स का जो एवरेज है तो वो कितना है हमारा, दैट इज 46. तो हम यहाँ लिखेंगे S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 अपॉन 5. ये कितना है 46. दिस इज 46. इट मीन्स अगर मुझे इसका सम कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. मीन्स ये यहाँ पे 5 इसको डिवाइड कर रहा है, जब ये इक्वल्स टू साइन के उधर चला जाएगा तो इट विल बी मल्टीप्लाइड. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 इज इक्वल्स टू 46 इंटू 5. नाउ 46 इंटू 5 इज 5 6 30, 5 4 20, 230. हमें क्या मिल गया यहाँ पे 230. अब इसी तरह से अगर हम जो हमें नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है स्टेटमेंट में कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इज 45, तो हम यहाँ पे फर्स्ट 4 का एवरेज क्या लिखेंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 इज 45 इंटू 4. यहाँ पे 5 था बिकॉज यहाँ डिनोमिनेटर में 5 आएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 रहेगा.
तो ये स्टेप मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रही हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 4 5 20, 2 कैरी 180। ओके, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, सम 180 मल्टीप्लाई, सॉरी प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है 180। नाउ ये जो हमारे पास वैल्यू S1 S2 S3 प्लस, अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे इसकी जगह रख दें, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 180, तो व्हाट वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट हियर एज 180। ये 1 है, इसको आप 1 अज्यूम कर लीजिए, इसे 2 स्टेटमेंट है ना, 2 स्टेटमेंट हो गए हमारे। ओके, अब इसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय 1 एंड 2। हम क्या लिख रहे हैं, 2 स्टेटमेंट है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू हमने रख दी 180, यहाँ तक की वैल्यू हमने क्या लिख दी 180 प्लस S5 इज इक्वल्स टू 230। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, स्कोर 5। तो स्कोर 5 क्या हो जाएगा 230 माइनस, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब ये इक्वल्स के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, जैसे यहाँ पे डिवाइड कर रहा था इक्वल की इधर गया तो क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 180। नाउ सब्ट्रैक्टेड 5, ओके 50 इज द आंसर। इट मीन जो फिफ्थ स्कोर है दैट इज 50, जो फिफ्थ स्कोर है वो क्या है 50। ओनली दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट, ये वाला क्वेश्चन था हमारा वर्ड प्रॉब्लम में जो डिफरेंट था, रेस्ट ऑल द क्वेश्चंस आर सेम एंड इजी। ओके, इजी है, सब में हमें सिर्फ एवरेज कैलकुलेट करना है। आई होप यू ऑल गॉट दिस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।